بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جن بھی لوگوں نے یہ ماسک نہیں پہنے ہوئے میں تاکید کروں گا کہ ماسک پہنے آگے سے۔ دیکھیں اللہ نے اتنا کرم کیا ہمارے ملک پہ، اب دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی عذاب سے بچایا، تو ہر محنت ہم نے کی، ایڈمنسٹریشن نے محنت کی، پولیس نے محنت کی، سب نے محنت کی، لیکن انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے جب کامیابی دی ہے تو یہ ناشکری میں چلا جائے گا کہ اب احتیاط نہ کریں، میں پہلے یہ کہنا تھا۔ اچھا جی، اب میں جب لاہور میں بڑا ہو رہا تھا، سب سے پہلے تو نلگے سے ہم لاہور کا پانی پیتے تھے، میٹھا پانی تھا، کبھی کچھ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ بوتل کا پانی چاہیے ہوگا۔ زمان پاک میں جب میں بڑا ہوا، صاف، کبھی پولوشن کا تصور ہی نہیں تھا، صاف آسمان ہوتا تھا، یعنی سردیوں کے ہم انتظار کرتے تھے کیونکہ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کے مزہ آتا تھا، اور ایک صاف شہر تھا، اور ایک وہ شہر تھا جدھر باغات اور یہ بڑے بڑے ایریاز، ہرے گرین ایریاز تھے۔ ہوا کیا، جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھتی گئی، لاہور بڑھتا گیا، زمان پاک جو شہر کے باہر تھا، ہم شہر کے سینٹر سے بھی اس طرف چلے گئے شہر کی طرف، جبکہ اتنی تیزی سے پھیل گیا۔ جو پولوشن تھی سردیوں میں، جو انسان دھوپ میں بیٹھ کے انجوائے کرتا تھا، وہ اب اتنی زیادہ وہ اوپر پولوشن ہوتی ہے کہ دھوپ ہی نہیں آتی۔ نومبر میں آپ دیکھیں کبھی آپ کو دھوپ ہی نہیں نظر آئے گی، اور جو پانی ہے وہ نیچے جاتا رہا، ہر 5 سال نیچے جاتا رہا، لیکن جو پچھلے 15 سال میں پانی نیچے گیا، تقریباً میرے خیال میں 800 فٹ آج پانی نیچے چلا گیا لاہور کا۔ اور جو سیٹلمنٹ، ان پلانڈ سیٹلمنٹ، آپ جہاز سے جب آتے ہیں، پھیلتا جا رہا ہے لاہور، گرین ایریاز ختم ہوتے جا رہے ہیں، آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا۔ ابھی بھی ہمیں گندم کی، کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی 2 سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں، 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، ہمیں پروڈکٹیوٹی، ہماری سیڈز، وہ اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایریاز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کاٹن پاکستان اتنی پروڈیوس کرتا تھا، وہ اب اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کاٹن ایریاز کم ہو گئے ہیں، اور اب امپورٹ کرنی پڑتی ہے پاکستان کو۔ لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور تبدیل ہوتا گیا، اور جو یہ راوی تھا، ہمیں سب کو بچپن میں یاد ہے کتنا بڑا دریا تھا، وہ اب سکڑ کے ایک سیوریج کا نالا بن چکا ہے۔ سردیوں میں تو سیوریج ہوتی ہے، بو آتی ہے دریا میں سے۔ آگے اگر آپ دیکھیں جس ریٹ پہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، یہ جو راوی پروجیکٹ ہے، یہ لاہور کو بچانے کے لیے، یہ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی بنے تو کچھ نہیں ہو، یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ لاہور کو اگر بچانا ہے تو یہ پروجیکٹ بننا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس کے بغیر لاہور میں پانی کے وہ پرابلمز آئیں گے جو آج کراچی میں ہیں، سیویئر پرابلمز لاہور میں آئیں گے، اور پولوشن کے پرابلمز ابھی جو لاہور میں اب پولوشن کے لیولز ہیں، وہ جو ڈینجر لیول ہے جس سے کہ لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہے، اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے لاہور۔ اس لیے یہ جو ان پلانڈ سیٹلمنٹ سارے لاہور کے ارد گرد پھیلتی جا رہی ہیں، یہ اب ضرورت ایک ہے کہ ایسا شہر بنے جو ماڈرن سٹی ہو، جس میں ساری ماڈرن سٹی کی سب سہولیات بھی ہوں، جس کے اندر پلاننگ کر کے ہم اب یہ نہ کریں کہ شہر پھیلتے جائیں، کیونکہ یاد رکھیں جتنے شہر پھیلتا جاتا ہے آپ ان کو پہنچا ہی نہیں سکتے، آپ کو اتنا خرچہ آ جاتا ہے، ان کو گیس اور بجلی پہنچانا، ان کو سیوریج پائپس پہنچانا، پھر
जो वेस्ट डिस्पोजल है, गंदगी आप नहीं उठा सकते। जितना शहर फैलता जाता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता गंदगी उठाने का। ये शहर पहले तो ये ऊपर जाएगा, इसमें जो मॉडर्न सिटीज़ होती हैं वो फैलती नहीं जाती, वो ऊपर जाती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा आसानी से अम्यूनिटीज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ। वो ज़्यादा आसान होता है गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए पानी, सीवरेज वगैरह सप्लाई करने के लिए। एक तो ये ऊपर चला जाएगा, दूसरा यही दरिया को बचाने के लिए अब पूरे पहले तो एक्स्ट्रा पानी इसमें आएगा, बैराजेस बनेंगे, और उसके अलावा जो सीवरेज जा रही है सारी इस दरिया के अंदर, उस सीवरेज को ट्रीट करके साफ पानी दरिया में डाला जाएगा। उससे क्या होगा कि दरिया का पानी भी ऊपर चला जाएगा, उससे जो लाहौर में नीचे गिर रहा है वाटर लेवल वो भी ऊपर आ जाएगा, ताकि लाहौर का पानी का सप्लाई भी ना इशू बने। और सबसे बड़ी बात कि दरिया भी रिवाइव हो जाएगा, और वो जो दरिया को जब हम वो चैनल में डालेंगे और बैराज बनाएंगे, तो साथ जो मॉडर्न सिटी लाहौर की, ये जो नया लाहौर बनेगा, ये उसके साथ साथ बनेगा। इसके फ़ायदे मैं अब आपको बताता हूँ। क्या पहले तो जो इनिशियल इसका मसला है, लाहौर बच जाएगा, पानी का मसला हल हो जाएगा, एक मॉडर्न सिटी बनेगी जो पूरी जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स वो देख के बनाएंगे। 60 लाख दरख्त उगाए जाएंगे यहाँ, पूरा हमने एक फॉरेस्ट एरिया बनाया हुआ है जिधर पूरे दरख्त ग्रीन लाहौर बनेगा, ये जो नया वाला है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इसका जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ओवर ए पीरियड इसके ऊपर कितना पैसा, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 ट्रिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। 5 ट्रिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है 50,000 अरब रुपए का। जाहिर है इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ये इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बेहतरीन मौका मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में पैसा जो पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट हो। 31 दिसंबर तक हमारे पास वो ये कोरोना की वजह से इस मुल्क में हमें मौका मिला है, हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हमें अलाउ नहीं करती थी कि इनफॉर्मल इकॉनमी, यानी वो पैसा जो फॉर्मल इकॉनमी में नहीं है, उसको हम नहीं ला सकते थे इसमें। लेकिन क्योंकि कोरोना है, 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है कि हम उस पैसे को भी बीच में ले आए इस नए प्रोजेक्ट के अंदर। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वो हमेशा बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम, उसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट नहीं करते पैसा, वो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उनको मौका देगा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास जो पैसा अवेलेबल है, वो तकरीबन जितना पाकिस्तान का GDP है उतना उनके पास पैसा है वहाँ। जो 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो उनके लिए भी एक ज़बरदस्त मौका मिल जाएगा कि उनको पैसा पाकिस्तान में लाने का। और जो सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट से मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह कि रोज़गार मिलेगा। ये लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और हाउसिंग शुरू करते हैं तो 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलना शुरू कर देती हैं। तो उसकी वजह से पूरे इकॉनमी जो हमारी चलनी शुरू होगी, हमें रोज़गार मिलेगा नौजवानों को। और फिर जो आखिरी चीज़, वेल्थ क्रिएशन, कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, जब इकॉनमी चलनी शुरू होगी तो वेल्थ क्रिएट होगी। और उस वेल्थ क्रिएशन की वजह से 2 काम हम करेंगे। एक, हम वो पैसा खर्च करेंगे अपने गरीब तबके के ऊपर, अपने एहसास प्रोग्राम के ऊपर, अपने नौजवानों बच्चों की तालीम के ऊपर। पहले ही हमने प्लान बना हुआ है पाकिस्तान में अब अस्पतालों के
ताकि हम लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट दे सकें, हेल्थ कार्ड के ऊपर। और फिर जो वेल्थ क्रिएशन होगी, जो इतना बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, उस वेल्थ क्रिएशन से इंशाल्लाह हम ये कर्जे वापस करने शुरू करें। क्रिएट नहीं होगा, आप कर्जे वापस नहीं कर सकते, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रावी प्रोजेक्ट। और ये फिर जिस तरह कहा गया, इस्लामाबाद के बाद ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जिधर एक नया शहर बनने जा रहा है। मैं आखिर में अभी अपनी टीम के साथ मिल रहा था तो मैंने इनको एक बात समझाई कि ये मुश्किल प्रोजेक्ट है, ये आसान प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी। अगर ये ना होती तो अब तक बन चुका होता। ये तो 2004 से कोशिश कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। क्योंकि ये मुश्किल प्रोजेक्ट है इसलिए कोई नहीं कर सका। लेकिन मैंने अपनी टीम को एक एडवाइस दी है अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कि जब आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट काम के पीछे जाते हैं तो जो आपका माइंड सेट होता है वो ये होना चाहिए कि मैंने अब फैसला किया कि मैंने प्रोजेक्ट करना है, जो भी होगा मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा और अब पीछे नहीं जाना, क्योंकि मैंने अपनी किश्तियां जला दी। इंसान में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जब वो ये फैसला कर लेता कि मैं किस किश्तियां जला के एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, तो अल्लाह ने उस पर इतनी सलाहियतें दी हैं, अंदर हमारे इतनी ताकत है। अल्लाह की सबसे बड़ी हम मखलूक हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। फरिश्तों को भी अल्लाह ने कहा कि इंसान के सामने झुको, क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें मैं वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता। वो हमारी सलाहियतें तब निकलती हैं जब हम ये फैसला करते हैं कि जो भी हो जाए मैं ये करूँगा और पीछे नहीं जाना, यानी फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। और मैं इसलिए हम सारी हमारी टीम तैयार है, मैं पूरा इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब इसको देख रहे होंगे, चीफ सेक्रेटरी, सारी जो राशिद अजीज़ जिनको हम ख़ास लेके आए इस प्रोजेक्ट के लिए, सारी हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब पूरा जोर लगाएगी ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो। उसके लिए तकरीबन हमारी तैयारी है। और ये इधर तक पहुंचने के लिए हम कम से कम 6 महीने लगे हुए थे कि इस स्टेज तक पहुंचे। अब से टाइमलाइंस के साथ ये प्रोजेक्ट को अब हम शुरू करने लगे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो कहते हैं ना कि एक ऐसा कई दफ़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है मुल्क में, अभी तक प्रोजेक्ट होते थे जी मेट्रो बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, लेकिन उससे मुल्क में वेल्थ क्रिएशन तो नहीं होती, बल्कि आप तकरीबन 28 अरब रुपया हर साल सब्सिडी में देंगे। वो प्रोजेक्ट जो कर्जे लेके बनाए गए हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी 28 अरब रुपए की। ये जो प्रोजेक्ट है ये होता है जो मुल्क में वेल्थ क्रिएट करता है। और ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो मुल्क में खुशहाली पैदा करते हैं, रोज़गार देते हैं, जो सारी मुल्क में चेन रिएक्शन आता है, आप इकॉनमी चलनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है वो भी साथ साथ चल रहा है। जो कंस्ट्रक्शन में हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो साथ साथ इसके चलेंगे। और मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2 साल हमने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। 2 साल हमारे वो गुजरे हैं जो कि पहले तो डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाना था, हमारे पास पैसे भी थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरे हुए थे, तो पहले तो हम डिफ़ॉल्ट से बचाने में हमारा टाइम निकल गया। उसके बाद एक मुश्किल जाती थी, कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है NRO का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज़ में वो शोर मचा देते थे कि जी NRO 2 तो हम फैटफ का बिल पास करेंगे, NRO 2 तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। अब ये वो टाइम आया है 2 साल के बाद कि इंशाल्लाह अब वो वक्त आया है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो जो हम डेवलपमेंट का सोच रहे थे, जो तरक्की का सोच रहे थे, जो रोज़गार देने का सोच रहे थे, इंशाल्लाह वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि जब ये मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। मैं फिर से आपको सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं फिर से अपनी टीम को कहता हूँ कि जो भी मुश्किल आएगी
مشکلیں آئیں گی انشاءاللہ ہم سب ختم کر کے اور یہ ایک لینڈ مارک ایک ہسٹوریکل پروجیکٹ بنائیں گے لاہور میں. شکریہ.